Varun, I'll switch to the news maker interview, the Priyanka interview. Anji. What is your impression of her? First, tell me that, please. After that interview, I found it very insightful. Well, I got a glimpse about the person called Priyanka Gandhi, not just the politician, because her tone was measured, but she opened up. Your impression? Yeah, I thought I totally agree, Saurabhji. You know, we'd always heard that. We had heard and read that, oh, she may be the more charismatic person. She's a better politician. She's very charming. She's better with people than her brother, than other people. So this was our way to test that. And I think without making any comparisons, I think what was really striking is that, you know, like Jignesh Mevani, to some extent, she was very open to talking about her own weaknesses, her vulnerabilities, her emotions, the evolutionary process of, you know, her emotions and her emotional state. She was more candid in a way about, even politically, about the party's weaknesses. So when we asked her about Mr. Vadra, why she hasn't countered that narrative effectively, if she thinks that it's all, you know, bogus, she was talking very openly about how the party has not caught up with the new media of the 21st century, and how its old methods of following a dignified silence, that strategy is no longer relevant, but how the party has just struggled to catch up. But the personal piece of it, talking about her growing up, talking about her processing her feelings after the assassinations, when she talked about how she couldn't sleep at night after Indira ji died because she was afraid that her dad will not, you know, come home the next morning. Things like that is where I found it particularly refreshing and new. And I think that speaks a lot to her personality. You know, she's not you could tell again that she's not a thoroughbred politician who has learned, I'm not going to say this, I'm going to say this in every interview, you know. So that's why I thought that she's very natural, very open to being vulnerable, which I thought was pretty special. Professor? No, I actually agree with her. This is a difficult question because, you know, ये conversation है, मैं एक लफ्ज़ में क्या कहूँ, you know, वो क्या हैं. अगर आप, वो कुछ अलग तरह की पॉलिटिशियन है मेरे विचार से, बिकॉज उनके अपने कहने में अभी तक तो वो हाउसवाइफ थी, घर चला रही थी, बच्चों का होमवर्क देख रही थी, तो उनको राजनीति के बारे में सोचने का इतना वक्त मिला नहीं. परंतु अगर आप मुझसे पूछें कि इंस्टिंक्ट की बात अगर है, ये फीलिंग है मेरी कि उनके पॉलिटिकल इंस्टिंक्ट अच्छे हैं. ओके, नाउ ठीक है, ये गलत है, ये बात खुदा जाने, ये तो वक्त ही बताएगा, पर इस वक्त मेरे ख्याल से उनके पॉलिटिकल इंस्टिंक्ट अच्छे हैं. और ये पॉलिटिकल इंस्टिंक्ट बहुत जरूरी है राजनीति में, और स्पेशली कहीं की भी राजनीति के लिए, कि जो आपके इंस्टिंक्ट है वो ठीक है कि नहीं. अब मैं इसके बारे में ज्यादा टिप्पणी भी नहीं कर सकता क्योंकि ये मुश्किल सवाल है कि उसके बारे में आदमी क्या सोचता है. मैं पूछे जी आप सौरभ जी के बारे में क्या सोचते हैं, मैं क्या बताऊं. ये सवाल थोड़ा मुश्किल है, सवाल थोड़ा टेढ़ा है, इसलिए अगर एक शब्द या दो शब्द में या एक कुछ लफ्जों में इसका जवाब देना मुश्किल है. पर अगर आप, मेरा पर्सनल व्यू इंस्टिंक्ट है, पॉलिटिकल इंस्टिंक्ट है, और अच्छा गुड पॉलिटिकल इंस्टिंक्ट. क्यों है ये नहीं मैं बता सकता. It's a very famous anecdote now that when a journalist in late 80s asked Rajiv Gandhi, whom do you see as your political successor? And his answer was, I think Priyanka has it. Often repeated anecdote. But I, as Harsh mentioned, I found it very candid and refreshing when she talks about the dilemma कि आपको पता ही नहीं कि आप जिम्नास्टिक टीम में इसलिए हो कि आप अच्छा जिम्नास्ट कर रहे हो, या इसलिए हो कि आपकी दादी प्रधानमंत्री है तो स्कूल चाहता है कि अच्छा वो देखने आ जाए. Right. So you have to do everything, and then it takes a lot to open up कि मैं पहले
एक्सट्रोवर्ट थी, बाद में रिक्लूसिव हो गई, फिर मैंने उस ट्रॉमा को कैसे प्रोसेस किया, या पॉलिटिक्स में आने ना आने के सवाल में विपश्यना का रोल, कि मुझे लगता था कि बिल्कुल दुनिया मेरे कंधों Yes. पर टिकी है, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है. डिस्कसिंग योर फियर्स इन पब्लिक, इट टेक्स अ लॉट. Yes. बट एक आंसर उनका मुझे बहुत ओपन एंडेड लगा, जहाँ पे आप लोगों ने बहुत कैटेगोरिकली पूछा कि क्या आप भविष्य में कभी, would we ever see you as the leader and the driving force of this party? And she says, firstly, I would like to say that to me, my brother is my leader and he'll always be. Secondly, I see hundreds of people in UP and different parts of the country who are very well equipped to fight the BJP. But I think there are plenty of people who are capable to lead the party as well. I do not know what is going to happen in the future. So it's open-ended. Open-ended. Yeah. मेरी भी रीडिंग यही है, मेरे ख्याल से ये कांग्रेस के नेता बन सकते हैं. और मेरा अगर she says कि I'm anti-legacy. How do you read that statement? I'm anti-legacy. देखिए, जितने भी डायनेस्टिक पॉलिटिशियन हैं, जिनको भी हमने किताब में इंटरव्यू किया है, अगर आप देखें तो सब कहेंगे हम एंटी लेगेसी हैं, परंतु सब ये भी कहेंगे कि हमारी लाइफ में हमारे जो ज्यादातर फादर्स हैं उनका बहुत भारी असर है हमारी जिंदगी पर, हमारी सोच पर. तो दोनों चीजें कहना चाहते हैं एक ही समय में. इसलिए कहना चाहते हैं मेरे विचार से कि उनको मालूम है कि ये तो आप कह नहीं सकते कि मैं चाहती हूं कि जी मेरी भी लेगेसी होनी चाहिए. दैट्स बैड पॉलिटिक्स, राइट? आप ये कह सकते कि हाँ, जो मेरे फोर फादर थे या मेरे पिताजी थे या मेरे दादा थे या मेरी नानी थी या मेरी दादी थी, उनकी सोच से मेरी सोच पे बहुत फर्क पड़ा, उन पर बहुत प्रभाव हुआ, मैं उनकी बहुत आभारी हूँ, राइट? मैं उनका बहुत आभारी हूँ, कोई भी कह सकता है. परंतु ये तो नहीं कहेंगे कि उसके बाद कि यार मेरा भी वंश चलना चाहिए. मैं अगर आपसे पूछूं सौरभ द्विवेदी जी, सॉरी, कि आप चाहेंगे कि लल्लन टॉप आपके बेटे बेटी चलाएं, फिर उनके बेटियों की बेटियां चलाएं, आप क्या कहेंगे? कि हाँ, लेगेसी होनी चाहिए. तो इसलिए अगर हम जब सवाल पूछते हैं जवाब वही देंगे. कोई नहीं कहेगा कि मेरी लेगेसी होनी चाहिए, और हिंदुस्तान में स्पेशली, बिकॉज हमारे यहाँ माना नहीं जाता कि लेगेसी होनी चाहिए. Then comes the big question, मतलब जिसको हम बोलते हैं शाश्वत प्रश्न, जो हमेशा से कायम है. अच्छा, he says in one of the answers that मेरा जाने का वक्त हो गया, मैं जा रहा हूँ. नहीं, please. Perhaps not in the letter, but elsewhere he said that none of us should be the president of the party, and I am in full agreement with him. I think that the party should find its own path. प्रियंका गांधी ये बात कहती है, भारत में हेडलाइंस बनती है, फिर वो बाद में एलेबोरेट भी करती है कि अगर कोई पार्टी प्रेसिडेंट बनेगा तो मैं उनके ऑर्डर को मानूंगी. और मेरे भाई ने भी यूथ कांग्रेस में और एनएसयूआई में ये सब लाने की कोशिश की. डू यू थिंक दिस इज पॉसिबल कि अगर वो कह भी दें और कोई प्रेसिडेंट बन भी जाए, क्योंकि नरसिम्हा राव को ये मुश्किल झेलनी पड़ी थी, क्योंकि दैट वाज द ओनली फेस, राइट? When Indira was not in power, उनको challenges झेलने पड़े, कई लोग टूट के अलग हुए, देवराज उसकी अलग पार्टी बनी, चौहान साहब अलग खाते में गए, सब चलता रहा. राजीव को भी ट्रिबल झेलना पड़ा थोड़ा बहुत, प्रियंका जिक्र भी करती हैं अरुण सिंह, अरुण नेहरू, इन सबका. लेकिन वो एक फेज ऐसा था जब कांग्रेस पार में नहीं थी, 1991 एंड 77 to 80. पर एक फेज है 91 से 96 का, when कांग्रेस इज इन पावर. Narasimha Rao is prime minister. Sonia back in 91 expressed her reluctance that I'm not willing. In fact, उसके बाद वो अरुणा आसफ अली को भेजा जाता है, अक्सर साहब से सलाह की जाती है, शंकर दयाल शर्मा, नरसिम्हा राव. और उनको ये कांस्टेंट रहता है कि भाई what should I do? विनय सीतापति अपनी बायोग्राफी में बहुत डिटेल में लिखते हैं उनके नोट्स के हवाले से कि भाई चाहता क्या है गांधी परिवार.
किनको अकोमोडेट करें, किनको नहीं करें, क्योंकि हमेशा वो एक पावर सेंटर रहेंगे, हाँ जी, ना होके भी थे और अभी तो वो है भी. So is it possible when she says it? Is it practically possible what she is saying theoretically? इफ यू आस्क मी, नहीं. वो प्रधानमंत्री जनरल सेक्रेटरी हैं कांग्रेस की. अगर कोई और प्रेसिडेंट बन जाए, बात यह है, और आपका कहना ये ठीक है कि मेरे विचार से अगर वो दिल से भी ये बात मानती हैं, परंतु जब तक गांधी फैमिली रहेगी कांग्रेस पार्टी में और उनका रहना जरूरी है, वो पावर ऑल्टरनेट पावर सेंटर रहेंगे, क्योंकि लीडर हैं जो चाहेंगे कि वो रहें. कोई लीडर जो उनके साथ रहते हैं वो भी चाहेंगे कि रहें. देखिए ना, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि ये ना सोचिए कि पार्टी में सिर्फ एक राहुल है और एक प्रियंका है और एक सोनिया है और कोई नहीं है. ठीक है ना, अहमद पटेल भी है, के वेणुगोपाल भी है, कपिल सिब्बल भी है, शशि थरूर भी है, जयराम रमेश भी है, ये सब लोग हैं. इन सबके भी तो विचार हैं. तो राजनीतिक में मैंने ये पूछा था देवेंद्र फडणवीस से, मजाक में कुछ, कि आपका एटीट्यूड तो बहुत पॉजिटिव है, पर राजनीति एक ऐसी प्रोफेशन है जिसमें सबको आपकी गद्दी चाहिए, तो उसमें आदमी पैरानॉइड भी रहता है हमेशा. तो आप पैरानॉइड हो गए, पॉजिटिव कैसे रहते हैं? ठीक है. अब कांग्रेस की तरफ से सोचिए कि जो लीडर हैं, अब शशि थरूर हैं या अहमद पटेल हैं या के वेणुगोपाल हैं, तो क्या आप उनको साइडलाइन कर देंगे? उनको अपनी गद्दी भी तो देखनी है, उनको अपनी सीट भी देखनी है. तो जब तक गांधी हैं, कई लोग गांधी के साथ रहेंगे, कहेंगे कि ये हमारा रास्ता है हमें अपनी गद्दी बचाने के लिए, और दूसरे लोग कहेंगे कि नहीं, हम तो नया कांग्रेस प्रेसिडेंट बन के उसके साथ रहेंगे. तो जब तक ये फैमिली है, जो कांग्रेस पार्टी के लीडर हैं उनके इंटरेस्ट में है कि ये लोग रहें और ये लोग ऑल्टरनेट पावर सेंटर रहें, और इनके इंटरेस्ट में भी है. तो मेरे विचार से दोनों के लिए, दोनों के फायदे के लिए है ये. Harsh, you want to add something? I think that as long as I think it's possible. So Professor Chibba said as long as they're in Rajniti, in politics, this is not possible. I think it's more like as long as they are all active day in, day out in the Congress party, it's going to be very difficult to do this. If they take a back seat and say, look, we are more of now a guiding force. We are an advisory body. We are guardian angels. You know, it's similar to how you have a RSS and you have a BJP. RSS is looked at as the guiding force. I don't think it's possible, but if they step back from their day-to-day duties and take that mentorship role, I think you can have an active president and an organization that's running. But I agree with Professor Chibba that right now, as things stand, if they give this to somebody else, you're looking at different factions. You're looking at a lot of, factionalism and fighting that could arise from it. And ultimately, there will be this power center that's basically guiding whoever the president is. So whoever becomes the Congress Party ka Adhyaksh won't actually have the powers that an Adhyaksh should have as things stand today. That's my worry. And that's why I think this is such a difficult, we keep, and, Professor Chibba and I have written also, in the Indian Express or in different newspapers that, they need to reform it themselves. They need to, get the high command out. But I think this is why it's such a challenging situation for them.